Please sit. People who are going outside and they are not going to listen to this, they will repent. I'm quite sure about Yeah. it. I mean, they will lose their money. You saw lots of things since morning about live operative workshops and this and that, various talks and margin positive and extra May capsular I request, there's an extension. interesting talk on creating wealth. So anyone who is staying outside would miss out on that. You can get your foot inside and listen that. So all that talk, if you don't listen to this talk, will be of no value at all. So what you have learned since morning, you must understand what is this talk about. Well, Uttam Mehta said that when you are in Ahmedabad, it's a rich city. You have a rich person here. Gautam Adani is here. You are in the uro-oncology section. It's a rich section. But what is important here is that why this particular talk is being kept at such a particular time. I asked Shrenik Shah, I asked Ravi Mohan also, that why this talk is kept at this particular time. They said, no, when you are in Ahmedabad, you have to talk something about finances, something about wealth creation. And what is the best time? When whole day's experience is over, when people are relaxed and they are having dinner, that's the time where we discuss all these things, and that's the reason why this talk is kept at this particular time. When we are talking of a wealth creation, wealth can be of several things. Since morning we have acquired the wealth of knowledge. Then there are wealth of reputation which is there, and there's a wealth of finances of a money. And when we talk of a wealth creation from the financial aspect, from the money point of view, who else comes in mind? It is only Dr. Pramod Rai. Pramod Rai is not only the person who will talk of theory and what calculations can be done in that, but he, from his own experience, will show you that how a wealth can be created. I remember when we had this first conference of EuroFinanceCon about 6-7 years back, people were not talking about finances. There is a very peculiar thing about the doctors. When you go to the lawyers, when you go to the chartered accountants, when you go to the engineers, they take a pride that I charge 1 lakh rupees for one session. I charge this much for this particular session. Chartered accountants say I charge this much money. But no doctor will say that I charge this much for one surgery. In fact, even if they are charging, they will say I charge less. This is how we are bombarded in our own mind that if you talk about finances, it is wrong. Actually, that's not correct. Earning money is not a bad thing. What has happened in our country is that those people who are rich, people think that they are earned by a very wrong means. It is not like that. Money can be earned in a proper way. Wealth can be created, a huge wealth can be created in a proper way, and that's what our objective and aim should be. We have Dr. Pramod Rai here, who is going to talk about wealth creation in a proper way. This particular talk is very helpful for the younger people. I am happy there are civil hospital residents are here and they are sitting and enthusiastic about learning this talk. This will be more useful than what you saw all this in the morning. Take it from me. So be attentive, listen to this. I have heard him, and whosoever has heard this, they all get impressed. And I'm sure you also will get impressed. So may I request Dr. Pramod Rai to come and give a very inspirational talk on the finances of wealth creation. Thank you. What is it? This one. Thank you, Sabnis sir.
शनिवार की सांध्य बेला में बापू की पावन धरती से आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यूरो ऑन्कोलॉजी के सभी इष्टजनों का मुझे यह मौका देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज का टॉपिक वेल्थ क्रिएशन। जैसा सबनीश सर ने शुरू किया था यूरो फाइनेंस, तब से हम लोगों ने एक मोटो लेके चले हैं कि टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी यूरोलॉजिस्ट। कहा जाता है पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कसम खुदा से कम भी नहीं। किसी भी चीज़ को अगर आता है तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने इष्टजनों को ज़रूर बताना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आएगा और आप दो जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर आपके पास ज़रूर से ज़रूर लौटेगा। तो बांटने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है और नहीं बांटने से आज न कल वो शून्य हो जाएगा। फाइनेंस के वन ऑफ द सबसे बड़े लीजेंड्स हमारे वॉरेन बफेट साहब हुए। उनका एक इम्पॉर्टेंट कोड है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड करते जाना है, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करनी है। दो इम्पॉर्टेंट हस्ती है। एक नॉर्मल डिस्कशन में एक बार बात हुआ कि बफेट साहब के बारे में सब कुछ लिखा जा चुका है, सब कुछ बताया जा चुका है। इवन कि जो चीज़ वो स्टॉक खरीदते हैं, जो स्टॉक को एनालाइज करते हैं, सब चीज़ पब्लिक डोमेन में होती है। फिर भी उनसे पूछा गया, जॉब बेसोस ने पूछा कि आपके बारे में तो हर चीज़ हर लोगों को पता है, लेकिन आपके जैसा दूसरा कोई वेल्थ क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहा है। सब चीज़ सबको पता है, फिर भी हर चीज़ लिखा हुआ है, फिर भी वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये था कि जब भी लोग आते हैं सबका एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा पैसा तुरंत मल्टीप्लाई हो जाए। जब तक हम आप सब लोग अपने पैसे को कहीं और कहीं ना कहीं तो पैसा रखेंगे, तकिया के नीचे तो रख नहीं सकते हैं जो अर्न करेंगे, या बैंक में रखेंगे, फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे, रियल एस्टेट में लगाएंगे, कहीं फ्लैट खरीद लेंगे, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट्स में ज़रूर पैसा रखेंगे। कोई भी अपने घर में कैश पैसा रखता नहीं है। तो जब तक आप किसी भी फिक्स डिपॉजिट में रखें, ईपीएस में रखें, कहीं भी रखें, 8 साल 10 साल में पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल हो रहा है, तब तक आप शांति से घर में बैठे रहते हैं, कभी नहीं पलट के देखते हैं। लेकिन द मोमेंट आप इक्विटी मार्केट में आते हैं, स्टॉक मार्केट में आते हैं, आपको लगता है कि मेरा पैसा 2 दिन में मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, 1 महीने में डबल क्यों नहीं हुआ। बस वहीं पे गलती कर बैठते हैं। द डे यू प्लांट द ट्री इज नॉट द डे यू ईट द फ्रूट। ऑलवेज इसको याद रखें और इसको गांठ बांध लें कि कभी भी कोई भी फलदार वृक्ष को बनने में थोड़ा समय लगता है। प्लांट करिए, थोड़ा दिन शेप दीजिए, समय दीजिए और जीवन भर फल का आनंद लीजिए। सो ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। इस पिक्चर को हर कोई समझता होगा। बुर्ज खलीफा का पिक्चर है 2006 का और 2016 का। 10 ईयर में कितना चेंज दिख रहा है इस दो पिक्चर्स में। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट में आए आप तो कभी भी डोंट थिंक फॉर व्हाट विल हैपन आफ्टर 1 ईयर, ऑलवेज थिंक व्हाट कैन हैपन इन द नेक्स्ट 10 ईयर। मार्केट हमेशा फ्लक्चुएशन देगा, कार्डियोग्राम की तरह चेंजेज आएंगे उसमें। तो अवॉइड ऑल सकम्बिंग टू शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। इन्वेस्ट करिए और फोकस करिए अपने फंडामेंटल्स पे। कोई भी अच्छे स्टॉक्स जो ले रहे हैं उसकी फंडामेंटल देख के लीजिए। हमेशा थिंक फॉर द बेस्ट बट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और कहा जाता है कि इन्वेस्टर प्रोड्यूस आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म रिजल्ट प्राइमरली बाय अवॉइडिंग डम डिसीजंस रेदर देन मेकिंग ब्रिलियंट डिसीजंस। एक जानने का फैक्ट है, 1982 में विप्रो का शेयर पहली बार आया था 100 रुपये का। अगर कोई आदमी उस समय सिर्फ 10,000 रुपये लगाता, सिर्फ 10,000, कुछ नहीं करता, लगा के छोड़ता, आज के डेट में उसकी वैल्यू 500 करोड़ रुपए होती। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि 10,000 नहीं होता अपने पास। तो उस समय 10,000 रुपये नहीं होते थे, रेजिडेंट थे हम लोग,
एमएस कर रहे थे हम लोग, अगर 1000 रुपये भी लगाते तब भी 50 करोड़ रहता। 1000 नहीं होता, 100 रुपये का एक शेयर आया था, कोई 100 रुपये भी खरीदता तो उसकी वैल्यू आज के डेट में 5 करोड़ रुपए होती। ये है स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल। समय देंगे बहुत बड़ा वृक्ष बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। क्या इजी है? पैसा कमाना कभी भी इजी होता नहीं है, लेकिन किसी भी सोसाइटी का अपने आसपास देखिए, आप खुद देखिए, जो भी बेस्ट ब्रेन होता है वो हमेशा या तो मेडिकल फील्ड में जाएगा या टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाएगा। आईटीएंस होंगे, मेडिकल वाले होंगे। जब सबसे अच्छे ब्रेन हमारे टेक्नोलॉजी और मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं तो सबसे अच्छा पैसा इन्हीं को बनाना चाहिए। फिर लॉयर्स और बाकी लोग कैसे पैसा बना रहे हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छे ब्रेन हमारे पास है। जब यूरोलॉजी सीख सकते हैं तो पैसा कमाना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ये न्यू जनरेशन्स के लिए समझने के लिए इम्पोर्टेंट स्लाइड है। 3 अदाकार आए हैं। पहले ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया 20 ईयर्स के एज में, 10,000 पर मंथ ओनली, एंड 30 साल में इन्होंने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। कितने साल इन्वेस्ट किया? ओनली 10 ईयर। टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इनका हुआ 12 लाख रुपीज। दूसरी अदाकारा हैं जिन्होंने 30 के एज में शुरू किया, सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, डबल अमाउंट, इनके अमाउंट से डबल अमाउंट इन्वेस्ट करना चालू किया। सेम ड्यूरेशन, और इन्होंने 10 साल किया, इन्होंने 20 ईयर्स किया। पैसा भी डबल इन्वेस्ट कर रही हैं, टाइम भी डबल दे रही हैं। कॉर्पस भी 4 टाइम्स ज़्यादा देना पड़ा इनको, 48। तीसरा देखिए, तीसरी अदाकारा 40 ईयर्स में शुरू की, पहले से 4 गुना, दूसरे से डबल, और ड्यूरेशन 20 ईयर्स। टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस पहले से 6 गुना और दूसरे से डबल। तब भी 60 ईयर की एज में इनका कॉर्पस देखिए। पहला जो सिर्फ 10 साल करके छोड़ दी, उनकी कॉर्पस 17.5 करोड़ बन के पड़ी थी। जिन्होंने 30 में शुरू किया और 50 तक किया, उनकी कॉर्पस 10.5 करोड़ बनती है। और जिन्होंने 40 में शुरू किया, उनकी कॉर्पस सिर्फ 5.3, जबकि सबकी पैसे 15% से ही कंपाउंड हुआ है। जो एवरेज कंपाउंड हमारा इंडेक्स चलता है, सेंसेक्स चल रहा है 15-16%, उससे कंपाउंड हुआ है, तब भी इतना कॉर्पस खड़ा हुआ है। इसी को ग्राफिक वे में है कि जब भी जो आदमी शुरू में इन्वेस्ट करेगा, जितना अर्ली इन्वेस्ट करेगा, वो हमेशा बाद में इन्वेस्ट करने वाले से आगे रहेगा। ये ग्राफ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है लोगों को। ध्यान दीजिए आप, 20,000 पर मंथ विथ एनुअल इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए 10% आप लेते हैं, 15% एवरेज रिटर्न आराम से मार्केट में मिलता है। शांत से बैठे रहेंगे, 15% का रिटर्न कहीं नहीं जाता है। 20 ईयर्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इसको, तो आपकी कॉर्पस होती है 5.21 CR, बिना कुछ किए। सिर्फ 1 साल बढ़ाते हैं आप, टाइम का फैक्टर देखिए, सिर्फ 1 साल बढ़ता है, ये वैल्यू होती है 6.18 CR। आप बहुत मेहनत करके अच्छे और स्टॉक्स ढूंढेंगे, अच्छे म्यूचुअल फंड ढूंढेंगे कि 15 से हमको 16% का रिटर्न मिल जाए। 1% रिटर्न बढ़ाने से वो गेन आपको नहीं हो रहा है जो कि 1 साल टाइम बढ़ने से आपको वो गेन हो रहा है। समझना बहुत जरूरी है यहाँ। दूसरा, नए लोगों को समझने के लिए और ज़रूरत है कि बहुत लोग जब नए नए आते हैं मार्केट में तो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू। तो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स जो लोग खरीदते हैं 1% ब्रोकर को कॉस्ट देते हैं। उस 1% कॉस्ट को आप सिर्फ देखिए 20 ईयर्स में क्या होता है। 15% और 16% के अंतर में देखिए कितना कॉस्ट आप बियर करते हैं। करीब 50 लाख का लॉस आप करते हैं सिर्फ ब्रोकर के कारण। दुनिया का सबसे वंडरफुल चीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डोंट पेज इट। जो जितना जल्दी कंपाउंड के इफेक्ट को समझ लिया, उसके लिए रास्ते उतने आसान होते जाते हैं।
पहले लाइन को ध्यान से देखा, वेल्थ इज नॉट बिल्ट बाय सेविंग बट बाय कंपाउंडिंग। पैसा कभी आप कमा के और जमा करके बना ही नहीं सकते हैं, जब भी बनेगा पैसा कंपाउंड होकर बनता है। मैक्सिमम लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि मैं बहुत अर्न करता हूँ तो मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊँगा। आपकी वेल्थ आपकी अर्निंग पे डिसाइड ही नहीं करती है। आप कितने भी बड़े हों, 10 लाख 20 लाख 30 लाख पर मंथ कमाने वाले भी हों, आपकी वेल्थ उससे नहीं बनेगी। आपकी वेल्थ बनती है कि आप उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और आपका पैसा आपके लिए कितना पैसा कमाता है। बहुत अच्छा कोट है इस पर कि आपकी फाइनल वेल्थ इस बात पे निर्भर नहीं करती है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। आप कितना पैसा कमाते हैं आपका वेल्थ वो डिसाइड नहीं करता है, आपका पैसा आपके लिए कितना पैसा कमाता है आपकी वेल्थ वो डिसाइड करता है। मैक्सिमम लोगों को शुरू के दिनों में ये लगता है कि मेरा बिगेस्ट एसेट है कि मैं कितना पर डे का अर्न कर रहा हूँ, कितना पर मंथ का अर्न कर रहा हूँ, लेकिन आप कितना जुडिशियसली उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पेशेंटली उसको रख रहे हैं और कितना टाइम दे रहे हैं, ये आपका बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर होता है। दो फार्मूला आपके सामने है, एक सिंपल इंटरेस्ट का और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट का। दोनों में डिफरेंस क्या है यंग लोग बताएंगे? थोड़ा सा इंटरेक्ट होगा तो आपको ही मजा आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे टाइम देखिए एक्सपोनेंट में आ गया है, यहाँ पे टाइम आपके पैरेलल में चल रहा है। एक्सपोनेंट में आने के कारण ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट और मज़ा देखने को मिलता है। ऑडियंस में रूल ऑफ 72 किसी को पता है? कैन वी डिस्कस 2 मिनट्स सर रूल ऑफ 72? अगर 72 रूल ऑफ 72 बोलता है कि कोई भी कॉर्पस आपका कोई भी पैसा 72 से डिवाइड कर दीजिए, उतने ईयर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। अगर 24% से ग्रो कर रहा है तो 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। 24% बहुत अनरियलिस्टिक वैल्यू नहीं है इंडियन मार्केट के लिए। अगर 24% से मल्टीप्लाई हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कॉर्पस आपका 24% से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 ईयर्स में डबल हो रहा है, तो 6 ईयर में कितना होगा? 4 टाइम्स। 9 ईयर में 8 टाइम्स। 10 ईयर में सर अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स। अगर 10 साल में 10 टाइम्स हुआ तो 20 ईयर्स में कितना होगा? 100 टाइम्स। 30 ईयर्स में 1000 टाइम्स आपकी कॉर्पस ग्रो करेगी। यही कंपाउंडिंग है सर। हमारा ब्रेन अभी ट्यून ही नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए कि हम 1 रुपये को 1000 टाइम्स सिर्फ 30 ईयर्स में ग्रो कर सकते हैं। वायर्ड नहीं है हमारा ब्रेन कि अभी हमको उस ट्यून को समझना कि कंपाउंडिंग में जितना जल्दी समझें उतना जल्दी पैसा बनता है। मैं भी अपना वेल्थ इसलिए बना पाया कि ये चीज़ को बहुत जल्दी समझ में आएगा। 94 में इन्फोसिस का स्टॉक आया था। 94 में इन्फोसिस का स्टॉक आया था। एक स्टॉक मिलता था उस समय 100 रुपये का। सिर्फ 200 स्टॉक खरीदे थे। 4 साल में 98 तक बोनस इतना मिला कि वो स्टॉक बढ़ के हो गया 1600। पैसा जो बढ़ा, स्टॉक का वैल्यू जो बढ़ती थी वो अलग, बोनस बढ़ते बढ़ते 16 गुना स्टॉक हो गया। वहीं पे आपकी कंपाउंडिंग की ब्रेन की बत्ती जल जाती है। ये बिना कुछ किए अपने आप देखिए कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी को समझाने के लिए दूसरा एग्जाम्पल होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट्स में अगर आप काम करने जा रहे हैं, आपको 2 ऑप्शन दिया गया कि भाई या तो 1 पैसा पर मंथ ले लो, लेकिन इस टर्म कंडीशन पे कि आपको हर महीने उसका पैसा डबल करके दे देंगे। इस महीने 1 पैसा देंगे तो अगले महीने 2 पैसा देंगे, उसके अगले महीने 4 पैसा देंगे। या 10 लाख पर मंथ ले लो और 3 साल के टर्म्स में हमारे यहाँ रह जाओ। तो देखने में शुरू में क्या लगेगा, जो लोग कंपाउंडिंग के इफेक्ट को नहीं जानते हैं वो तुरंत क्या करेंगे, 10 लाख पर मंथ लेके शान से बैठ जाएंगे। तो अगर 10 लाख चूज करते तो उनका टोटल कॉर्पस होता 3.6 करोड़, और 1 पैसा पर मंथ लेते अगर तो 36वें महीने उनकी वैल्यू होती 36 करोड़ की सैलरी होती है। 36वें में अगर 36 होती तो 35वें में होती 18, उसके पहले होता 9, उसके पहले होता 4.5, 4.5,
तो इतना ह्यूज कॉर्पस उनका बनता। तो इन स्टॉक मार्केट योर पेशेंस विल बी ऑलवेज टेस्टेड एंड कन्विक्शन विल बी रिवार्डेड। समय आपको देना है, पेशेंस रखना है। वॉरेन बफेट का वे है थिंकिंग ऑलवेज, प्राइस और वैल्यू दो चीजें हैं, डिफरेंस पता है किसी को? प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। आज रिलायंस के स्टॉक का प्राइस सबको पता है कि रिलायंस का स्टॉक चल रहा है 3000 में 3200 रुपये में, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है यही समझने की आवश्यकता रहती है। अगर प्राइस वैल्यू से ज़्यादा है तो नहीं खरीदना है, अगर प्राइस वैल्यू से कम है तो भर भर के खरीद लेना है। आपको बहुत स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में पेशेंस टेस्ट किया जाता है, तो यू डोंट हैव टू बी द स्मार्टेस्ट पर्सन टू गेट रिच। यू कैन इन्वेस्ट इन द कंपनीज दैट स्मार्टेस्ट पीपल वर्क फॉर एंड लेट देम मेक यू रिच। बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स को हायर कर रहे हैं सिर्फ हमको पैसा बना के देने के लिए। अपना तो पैसा बनाएंगे ही। शेयर होल्डर का मतलब होता है कि आप पार्ट मालिक है उस कंपनी के। कभी कभी कहीं बैठे रहते हैं, हम लोग ट्रेवल करते हैं तो कोई पूछता है क्या करते हैं, तो अपना प्राइमरी इंट्रोडक्शन तो होता है कि यूरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन सेकेंडरी इंट्रोडक्शन होता है कि हमारे स्टील के भी प्लांट्स हैं, हमारे पावर प्लांट्स भी हैं, हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज भी हैं। क्योंकि जो जो स्टॉक्स हमारे पास है सबका मालिक तो मैं हूँ ही, छोटा ही मालिक हूँ लेकिन मालिक हूँ मैं। ये दो कंसेक्यूटिव ईयर्स के कार्टून्स है, 2005 और 2006 के। 2005 में जब इंडेक्स चला गया था 4000 का निफ्टी था, उस समय कार्टून बनाया गया था अब कितना इंडेक्स बढ़ेगा, दीवार तोड़ के बाहर जाएगा क्या? 5000 तो पहुंच गया, तो दीवार में छेद किया जा रहा था। और 2006 में बढ़ के चला गया 12000। फिर कार्टून बना कब छेद करने से काम नहीं चलेगा, दीवार तोड़ देते हैं। और आज कितने पे है? 75,000 प्लस पे है। कोई बता सकता है वॉरेन बफेट साहब को इतना वेल्थ क्यों बना? इसलिए वॉरेन बफेट साहब का वेल्थ नहीं बना कि वॉरेन बफेट साहब बहुत समझदार थे और बहुत इंटेलिजेंट थे। वॉरेन बफेट की वेल्थ इसलिए बना कि उन्होंने कंपाउंडिंग के इफेक्ट को समझाया और प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर कंट्री में पैदा हुए थे। अगर अफगानिस्तान में पैदा हुए रहते, पाकिस्तान में पैदा हुए रहते तो उनकी वेल्थ नहीं बनती। प्रॉपर समय में प्रॉपर जगह रहना भी उतना इम्पोर्टेंट है और कंपाउंडिंग के इफेक्ट को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जिस फेज से कंट्री में गुजर रहे हैं, जिसको भारत का अमृत काल कहा जाता है, इस फेज से हम गुजर रहे हैं। जिस फेज से यूएस 1980 से लेकर 2002 तक गुजरा, चाइना 2001 से लेकर 2014 तक गुजरा, हम उस फेज से अभी गुजर रहे हैं। जितनी आज के डेट में हमारी 5 ट्रिलियन की मूवी बनने में हमको लग गया कितने साल? 70 साल से ज़्यादा लग गया। अगले 5 ट्रिलियन सिर्फ 6 से 7 सालों में आएगा। तो जितनी जीवन भर में कॉर्पस आपने बनाई है, अगर आपने 100 करोड़ बना के रखे हैं तो अगले 5 सालों में आपकी कॉर्पस कम से कम 200 करोड़ होनी चाहिए। क्योंकि कंट्री का कॉर्पस अगर ग्रो करेगा तो आपकी कॉर्पस भी सेम रफ्तार से कम ग्रो करनी चाहिए। इंडिया इज गोइंग टू बी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है। हमने 6 साल बोला, 7 साल बोला, अगर मोदी गवर्नमेंट 300 प्लस से आती है तो 6 साल भी नहीं लगेगा, 5 साल में हो जाएगा काम। मान के चलिए, लिख के रख लीजिए सर। अधिकांश लोग, नए लोग जब मार्केट में आते हैं, बुल मार्केट देखते हैं, शुरू में पैसा दनादन हर दिन 5%, 6%, 8% स्टॉक दिखता है उनको। जब बुल मार्केट चलता है तो घोड़े गधे सब एक रेस में दौड़ते हैं और उसमें पहचान करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन घोड़ा है कौन गधा है। और बहुत बार गधे घोड़े को सरपास करके आगे ही निकलते जाते हैं। रीजन होता है कोई रूल रेगुलेशन, कोई नियम कायदे फॉलो नहीं करना है उनको, बस दौड़ना है। लेकिन जब कोई बैरियर आएगा तो उस बैरियर को पार करने की क्षमता उनमें नहीं होती है, वो लड़खड़ा के गिर जाएंगे वहाँ पे, जबकि घोड़ा टप के पार कर जाएगा उसको।
बुल मार्केट अच्छा है, लेकिन बुल मार्केट में बहुत जुडिशियस रहने की आवश्यकता होती है। इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक रूल होता है एसटीपी। साउंड इन्वेस्टमेंट करिए, टाइम दीजिए और पेशेंस रखिए। संयम रखना बहुत ज़रूरी है, समय देना बहुत ज़रूरी है और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज का इम्पोर्टेंस ज़रूर है, लेकिन नॉलेज से ज़्यादा ये 3 फैक्टर्स काम आते हैं। अनदर इज करेज टू, जब मार्केट गिरा है, अंधेरा छाया है, उस समय करेज रखना है कि हम इन्वेस्ट कर पाएँ। आज के डेट में टेक्नोलॉजी बात हो रही थी अभी भी, थोड़ी देर पहले भी। टेक्नोलॉजी है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास 2-2, 3-3 ऐप पड़े हुए हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। डाटा का इतना बल्ज है, सब लोग, कोई ट्विटर पे है, टेलीग्राम पे है, व्हाट्सएप पे दुनिया भर के ग्रुप्स चल रहे हैं। इतना डाटा का इन्फॉर्मेशन सबके पास है कि डाटा आने के कारण लोग एक फॉल्स इल्यूजन में आ गए हैं। और जितना ज़्यादा डाटा का इन्फॉर्मेशन होता है, एक फॉल्स कंट्रोल आता है कि हमको सब कुछ आता है, हमारे पास बाकी लोगों से ज़्यादा जानकारी है। जबकि ट्रूथ ये है कि आप इसमें से नए लोगों को तो नहीं पता हो, लेकिन पुराने लोग कमेंट्री सुनते थे, पूरा नॉइज रहता था और उसमें से केवल रन, स्कोर, चौका सुनने के लिए कान के पास लगाते थे। सिग्नल का इम्पोर्टेंस है, नॉइज का इम्पोर्टेंस नहीं है। नॉइज आपको ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट करेगा, सिग्नल पकड़ने की क्षमता बढ़ानी है। डाटा इज नॉट इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा डाटा होने से आपको ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डाटा इज नॉट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। नॉलेज इज नॉट अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग इज नॉट द विजडम। इस चीज़ को याद रखना है कि बहुत डाटा के चक्कर में नहीं पड़े, लेकिन हाँ, सिग्नल पकड़ने के चक्कर में पड़ना है कि कौन चीज़ सिग्नल दे रहा है मार्केट में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ किस तरफ जा रही हैं। टाइमिंग और टाइम का इम्पोर्टेंस पूछा जाता है कि टाइमिंग और टाइम का इम्पोर्टेंस क्या है, किस समय लगाना चाहिए। कहा जाता है कि हाई पर भी इन्वेस्ट करके लोगों का पैसा बहुत बन सकता है अगर समय और धैर्य है, और लो पे भी इन्वेस्ट करके लोग पैसा नहीं बना सकते हैं अगर उनके पास धैर्य और संयम नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। कोविड क्राइसिस, सब लोग अभी जितने लोग बैठे हैं सब लोग उस फेज को अभी झेले हुए हैं। कोविड क्राइसिस के पहले मार्च में अपनी मार्केट गिरी थी, बुरी तरह गिरी थी मार्च 20 में। फरवरी में मार्केट ऑलमोस्ट पीक पे था, फरवरी 2020 में। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए म्यूचुअल फंड का। 2 म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दें। एक निपॉन ग्रोथ फंड जो मेरा पहला म्यूचुअल फंड था, दूसरा HDFC फ्लेक्सी कैप। निपॉन म्यूचुअल फंड जब पीक पे था तो उसकी NAV हुआ करती थी 1400 रुपये, जो गिर के आ गई थी 800 रुपये पे। और HDFC फ्लेक्सी कैप का NAV हुआ करता था 700 रुपये, जो गिर के 400 रुपये आ गई थी पीक पे। अगर उस समय आप नॉइज को सुनते तो पैसा नहीं लगाते मार्केट में कि अरे कोविड क्राइसिस आने वाला है, इतना बड़ा रसिया यूक्रेन वार होने वाला है, इजराइल इराक वार होने वाला है, पैसा नहीं लगाएंगे, पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे। उसके बावजूद जो 1400 रुपये में लगाया, जो 1400 वाला बढ़ के आज हो गया है 4000 रुपये पिक पे लगाने के बाद भी। 32% के CAGR से उसके के बाद भी ग्रो किया है। दूसरा HDFC फ्लेक्सी कैप को लीजिए, मार्केट गिरने से पहले अगर पिक पे भी आप लगाए रहते तो 24% के CAGR से आज 1800 रुपया उसका NAV है। और टाइमिंग और टाइम के डिफरेंस को समझिए। टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग से। कहा जाता है कि बहुत जल्दी पैसा बनाना है तो 20 से 25 साल लगेंगे। बहुत जल्दी पैसा बनाना है तो 20 से 25 साल लगेंगे, और बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है तो 10 से 12 सालों में भी बन जाएगा। दोनों में अंतर समझिए। बहुत जल्दी बनाने के चक्कर में आदमी बहुत गलतियां करता है कि बहुत क्विक बनना है, समय और धैर्य नहीं रखता है। और पेशेंस रखिएगा, अच्छी जगह बैठे रहिएगा तो 10 साल में भी अच्छा पैसा बन जाएगा। Far more money has been lost by investor preparing for corrections or trying to anticipate correction than has been lost in correction themselves. अभी भी बहुत लोग बैठे हैं कि इलेक्शन में जब मार्केट गिरेगा तब पैसा लगाएंगे। ठीक है, 5% मार्केट गिर भी गया और अभी से लेकर इलेक्शन तक अगर 8% बढ़ गया तो क्या फ़ायदा होगा?
तो अच्छे स्टॉक्स खरीदिए। हीरो होंडा का टैगलाइन हुआ करता था, फील इट, सेट इट एंड फॉरगेट इट। अच्छे स्टॉक्स लीजिए, शांत से बैठिए, समय दीजिए, धैर्य रखिए, पैसा अपने आप भर भर के आएगा। ये नए लोगों को बहुत जिज्ञासा होती है, ट्रेड करूं, ऑप्शन करूं कि इन्वेस्ट करूं। इन्वेस्ट करने में तो बहुत दिन बाद पैसा बनेगा, ट्रेडिंग में तो 2 दिन में पैसा बन जाएगा। कोई भी इंडिया हो या वर्ल्ड हो, कोई ऐसे 5 नाम बता सकते हैं जो ट्रेडिंग करके बड़े वेल्थ बनाया हो? कोई बता सकता है 5 नाम? कोई भी 5 छोड़िए, 2 बता दीजिए कोई बड़े नाम जो ट्रेडिंग करके पैसा बना हो। हरसिंह मेहता का पैसा ट्रेडिंग करके बहुत नहीं बना सर। झुनझुनवाला साहब का बना, लेकिन ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बना। पैसा उनका मेनली बना इन्वेस्ट करके। जो टाइटन खरीदे, उस समय हम लोग भी टाइटन खरीदे थे, इन्वेस्ट करके मेन पैसा उनका बना। इवन की कहा जाता है कि जिन्होंने ट्रेडिंग की शुरुआत की सर, लिवरमोर साहब थे, जिन्होंने ट्रेडिंग की डिस्कवरी की। चार्ट पैटर्न उनकी डिस्कवरी थी, ऑप्शन ट्रेडिंग उनकी डिस्कवरी थी। उनको ट्रेडिंग की इंडस्ट्री का डॉन ब्रैडमैन बोला जाता है। जब 1929 का वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आया था, मार्केट क्राइसिस, उस समय सबसे बड़े विनर साबित हुए थे। उन पे बड़े बड़े लेख लिखे जाते थे उनके नाम पे। वो भी 10 साल बाद सुसाइड कर लिए थे, तो अपनी लाइफ पूरी नहीं कर पाए थे, सुसाइड करना पड़ गया था उनको। ट्रेडिंग से कोई पैसा बना ही नहीं सकता। अर्निंग कर सकते हैं, पैसा नहीं बनेगा। ये चार्ट देखिए, जितनी चीज़ें सोच सकते हैं, जितनी अनहोनी होना। मैं 92 से बताऊंगा, जब से मैं मार्केट को ट्रैक कर रहा हूं। सोवियत क्राइसिस आया, हर्षद मेहता क्राइसिस आया, वाजपेयी जी का फेज आया, देवगौड़ा जी का फिर पोखरण परीक्षण हुआ, यूटीआई क्राइसिस आया, गोल्डमैन सैक्स का क्राइसिस आया, कारगिल वार हुआ। जितनी बैड थिंग आप सोच सकते हैं, जीएसटी इंक्लूड हुआ, नोटबंदी हुआ, रसिया यूक्रेन वार हुआ, सब कुछ हुआ। इसके बावजूद इंडेक्स 1000 से बढ़ते बढ़ते 75,000 76,000 पे चल रहा। तो मेगा न्यूज़ से दूर रहना है। कुछ भी होगा, मार्केट अल्टीमेटली कहाँ जाना है? इंसान हो या निफ्टी हो, लॉन्ग टर्म में उसको ऊपर ही जाना है। नए लोगों के लिए शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है एसआईपी। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी किसी भी चीज़ में हो सकती है, स्टॉक में हो सकती है, रियल एस्टेट में हो सकती है, गोल्ड में हो सकती है, म्यूचुअल फंड में हो सकती है। जनरली लोग एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड समझते हैं। एसआईपी का मतलब एक आदत बनाना, एक सिस्टमेटिकली हम इन्वेस्ट करना सीखें। एसआईपी आपको हैबिट डेवलप करता है इन्वेस्ट करने का। कम पैसे में बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद सकते हैं, अफोर्डेबल हो जाता है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, रिस्क रिड्यूस कर देता है आपका, और उसके कारण कंपाउंडिंग की बेनिफिट आपको मिलती है। शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि बहुत पैसा नहीं बन रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बनेगा आपको एसआईपी से बहुत लंबी वेल्थ बनती है। आपकी मार्केट वोलेटिलिटी को प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा उपाय है एसआईपी। किसी को सुन के ताजुब लगेगा कि 1000 रुपये अगर 95 में एनएफओ आया था रिलायंस ग्रोथ फंड का, 1000 रुपये पर मंथ को इन्वेस्ट किया रहता एसआईपी में, आज तक बैठा रहता, 192 करोड़ की कॉर्पस उसकी खड़ी होती है। अब कैसे ले अच्छे स्टॉक्स? सबके दिमाग में आएगा कि अच्छे स्टॉक्स चुने कैसे? स्टॉक मार्केट में आ तो गए, अच्छे स्टॉक्स चुनेंगे कैसे? नए लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि अब कुछ ग्राफ्स देखना शुरू करिए। स्क्रीनर एक अच्छा साइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उठा के देख सकता है, सबके मोबाइल में अवेलेबल है। स्क्रीनर खोलिए। प्राइस टू अर्निंग, किसी भी मार्केट में पैसा 3 तरह से बनता है। एक, कंपनी की अर्निंग ग्रोथ हो, दूसरा कंपनी डिविडेंड देती है, तीसरा पीई में
एक्सपेंशन हो, मतलब कंपनी का परसेप्शन इंक्रीज हो कि कंपनी बहुत अच्छी है। जैसे जैसे परसेप्शन इंक्रीज होगा उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। तो पी रेशियो सबसे शुरुआत में देखने के लिए अच्छा रेशियो होता है कि मीडियन पी से कंपनी की स्टॉक्स नीचे चल रहा है कि ऊपर चल रही है। मीडियन पी को अगर ट्रैक करेंगे यहाँ पे पी रेशियो में लेके, तो आपको दिखे कंपनी पहले से जो इसका एवरेज पी रहा है पिछले 5 सालों का, उससे नीचे चल रहा है कि ऊपर चल रहा है। अगर नीचे चल रहा है तो आपको वैल्यू फॉर मनी है, लेके बैठ जाइए शांति से। हमारा सबसे प्यारा स्टॉक टाइटन, जो सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया। देखिए अच्छे स्टॉक्स आपको शॉर्ट टर्म में लगेगा कि बैक कैसे जाएगा इसमें, बैक जाना है सर, यस सर, हाँ आगे सर। देखिए कंपनी को एनालाइज करने, स्क्रीनर ही है, अभी स्क्रीनर चल रहा है पूरा। स्क्रीनर में नीचे आइएगा तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ दिखेगी। 1 साल में कंपनी क्या ग्रो कर रही है, पिछले 3 सालों में कंपनी का ग्रोथ क्या रहा, पिछले 5 सालों में कंपनी का ग्रोथ क्या रहा, पिछले 10 सालों में कंपनी का ग्रोथ रहा। 15% के ऊपर ग्रोथ अगर दे रही है तो बहुत अच्छा ग्रोथ कहलाता है। सेम प्रॉफिट में आइए, 1 साल में क्या प्रॉफिट है, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट क्या है, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट क्या है और 10 साल का एवरेज। सेम स्टॉक मार्केट में अप्रिसिएशन क्या मिल रहा है, कितने % का ग्रोथ मिला है और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है। अगर सारे फैक्टर 15-20% के ऊपर हैं तो स्टॉक्स बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा ग्रीडी होइएगा उतना पैसा लॉस करने का चांस बढ़ेगा। सेम टाइटन को, स्क्रीनर को और नीचे ले आएंगे, कुछ हाईलाइटेड किया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कोई भी कंपनी अगर लगातार हर साल देखिए सस्टेन ग्रोथ, सस्टेन प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। 2016 में 900 करोड़ की प्रॉफिट से आज बढ़ते बढ़ते उसका 5292 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर सस्टेन ग्रोथ हो रहा है कंपनी में तो वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। शॉर्ट टर्म में ना रिफ्लेक्ट हो, 6 महीने बाद रिफ्लेक्ट होगा, साल भर बाद रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन होगा जरूर। नेट प्रॉफिट को भी देखना जरूरी है कि नेट प्रॉफिट इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि नेट कैश फ्लो, उनके हाथ में सब कुछ बांटने के बाद कुछ पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पे क्या पैसा लगाएंगे, यही नेट कैश फ्लो लगेगा। दूसरा बहुत अच्छा स्टॉक है CDSL का हमारा। यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट दिखाने के लिए कि क्या फैक्टर्स आपको देखने जब नए नए स्टॉक सिलेक्ट करें। इस फैक्टर पे देखिए आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर ये कंपनी 100 रुपये कमाती है तो अपने पास कितना पैसा रखता है, कभी भी 50 से नीचे नहीं है। 58-60 पैसा अपने पास रखता है। 100 रुपये कमाएगा तो 58-60 रुपये अपने पास रखेगा। अपने पास रखेगा मतलब आपको देगा, क्योंकि मालिक तो आप भी हैं स्टॉक खरीद लिए तो। दूसरा, कहीं भी स्टॉक ट्रेड होगा, जो भी ट्रेड होगा सब इसी के प्लेटफॉर्म पे आना है, तो पैसा तो आपको बनना ही बनना है। दूसरा, म्यूचुअल फंड पे आइए। कैंप्स हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से म्यूचुअल फंड्स ट्रेड होते हैं। ये रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको दिखाने के लिए स्लाइड्स को लिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है देखने के लिए कि कितना पैसा हमको कमा के कंपनी दे रही है। बेसिक फिल्टर्स हैं। ये हो गया पैसा अर्निंग को बना के। अब आता है कि कंपनी डिविडेंड के रूप में, जिसको मैक्सिमम लोग और अच्छे अच्छे एनालिस्ट लोग हैं जो बड़े बड़े फंड हाउस चलाते हैं, वो भी इसको 90% 95% लोग मिस करते हैं इस फैक्टर्स को, कि पैसा इस रूप में भी कितना बन सकता है, ये बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। तो गेटिंग ए हैंडसम डिविडेंड एज ए शेयर होल्डर्स फील्स लाइक ईटिंग दिस पार्ट ऑफ द आइसक्रीम। आइसक्रीम का मज़ा अलग लीजिए, कोन का मज़ा अलग लेना है। बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स जो सस्टेन डिविडेंड देते आते हैं। आपको एक रियल एग्जांपल दिखाएंगे जो कि मैक्सिमम एनालिस्ट लोग, मैक्सिमम ब्रोकर लोग
और अच्छे अच्छे इन्वेस्टर जो बैठे हैं इस चीज़ को लॉस किए हैं। इंडियन ऑयल का स्टॉक 96 में भी 80 रुपये 90 रुपये का चल रहा था, और इस फेज को छोड़ दिए, पिछले 2 सालों के फेज को छोड़ दिया तो अभी भी 90-95 में ही चलता था। अभी भले 200 रुपये के आसपास हो गया, लेकिन 90-95। तो लोगों को क्या लगता था कि स्टॉक प्राइस तो सेम ही है, कोई बहुत तो आ नहीं रहा है इसका स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन। जैसा था 20 साल पहले वैसा ही आज भी है, और यही मैक्सिमम लोग गलती कर बैठते थे। अब देखिए 98 में सिर्फ 10,000 हमने लिया इंडियन ऑयल। बोनस देखिए हर कुछ सालों में उसको लगातार बोनस मिलते आया। 22 में ये 10,000 स्टॉक्स अपने आप बढ़ के कितना हो गया आपका, बिना कुछ किए 3,60,000। खरीदे 10,000, लेकिन आज के डेट में हो गया है 3,60,000। अभी फिर डिक्लेयर कर दिया 1:1, तो ये 7,20,000 हो जाएगा। लोगों को क्या लगेगा, 100 रुपये के वैल्यू थे तो 10,000 पे आपकी 100 रुपये की वैल्यू थी, जबकि आज की वैल्यू आपकी क्या होगी, 3,60,000 पे आपकी वैल्यू होगी, उतनी इंटू 100। और ये मैक्सिमम लोग मिस करते हैं। जो डिविडेंड उस समय मिलता था 10,000 पे 10 रुपये के हिसाब से आपको 1 लाख रुपये, आज आपको 36 लाख रुपये मिलेंगे। तो डिविडेंड भी इतना मिलेगा, कॉर्पस भी इतनी ग्रो हुई, तो ओवरऑल अगर CAGR देखिएगा तो करीब करीब 42% का CAGR आता है। 42% से, जो कि गिनती के स्टॉक्स दिए हैं मार्केट में 42% के रिटर्न 1998 से लेके अभी तक। कुछ पोटेंशियल वही स्टॉक्स जो आपको फिल्टर करने के लिए दिखाया, वही पैरामीटर से पी रेशियो देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए। तो सेल्स इंक्रीजिंग देख लीजिए, पी रेशियो को बढ़ता हुआ देखिए, प्रॉफिट मार्जिन देखिए। अभी भी मैं सर्टेन हूँ इस हॉल में मैक्सिमम लोगों को 1:1 पूछा जाएगा कि पैसा कहाँ सबसे ज़्यादा आपने लगाया है, तो आज भी बोलेंगे प्रॉपर्टी में। मोर देन 50% लोग आज भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर एक बंगला आपके पेरेंट्स लोग 1 लाख में खरीदे रहते और 100 साल बाद 400 करोड़ का बिकता, पूरे शहर में चर्चा हो जाता है कि 1 लाख का बंगला इनका 400 करोड़ का बिका। लेकिन ओवरऑल रिटर्न कितना आया आपको, 11.3% ओनली। क्योंकि प्रॉपर्टी में कोई एनुअल ग्रोथ रेट से सोचता ही नहीं है कभी भी। देखने में 400 करोड़ लग रहा है, लेकिन उसका ग्रोथ रेट सिर्फ 11% का है। ऐसे ही देखिए 25 साल पहले कोई प्रॉपर्टी अगर लेते और 10 टाइम्स भी मल्टीप्लाई हो जाता, 10 लाख की प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की बिक रही है 20 साल 25 सालों में, तो 9% का ग्रोथ है आपका सिर्फ, जबकि हमारा इंडेक्स 15-16% का ग्रोथ दे रहा है। रिलायंस ग्रोथ फंड, जिसका नाम बार बार ले रहे हैं, जो निपॉन ग्रोथ फंड हो गया, 25% के CAGR से लास्ट 26 साल में ग्रो कर रहा है। तो लिमिटेड प्रॉपर्टी है जो कि इस रेट में ग्रो कर सकती है, नहीं तो नहीं करती है कभी प्रॉपर्टी इस रेट में ग्रो। तो कभी भी देखें, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी आपका एसेट हो, कि कितना ग्रोथ हमको मिला, उसको XIRR CAGR के टर्म में हमेशा देखें। दूसरा सबसे बड़ा इशू है प्रॉपर्टी के साथ में लिक्विडिटी एक कंसर्न है। जब चाहेंगे आप पैसा नहीं मिलेगा, और आज के डेट में इंडियन मार्केट हमारा T+1 है। T+1 का मतलब कि हमको अगर आज पैसा चाहिए आज भी करें तो आज 80% पैसा मिल जाएगा, कल 20% पैसा मिल जाएगा, एक दिन के अंदर पूरा पैसा मिल जाएगा। जबकि ज़मीन हो, प्रॉपर्टी हो, बेचने में आपको महीनों निकल जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मंत्र है कि बुल की तरह इन्वेस्ट करिए, मौका मिला जम के खरीद लीजिए, बेयर की तरह शांत से बैठे रहिए, और ईगल की तरह वॉचफुल रहिए हमेशा। इन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुद में निवेश करिए, बाकी लॉन्ग टर्म में सब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। अपने पे समय दीजिए, परिवार पे समय दीजिए, परिवार पे खर्च करिए, अपने शौक पे भी खर्च करिए, सिर्फ मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं करना है। और व्हेन मनी स्पीक्स नोबडी चेक्स द ग्रामर। इस स्लाइड का एक इम्पोर्टेंस है कि अपने शेड्यूल में देखिए, वेल्थ क्रिएशन नहीं लिखा हुआ, वेल क्रिएशन लिखा हुआ है।
वहाँ भी कोई ग्रामर चेक नहीं किया, स्पेलिंग चेक नहीं किया। तो जब पैसे की बात होती है स्पेलिंग ग्रामर सब भूल जाता है। थैंक यू सर। Well, I think this was a fantastic talk, and I'm sure everybody must have enjoyed it. Whatever you have heard since morning, the CA prostate and CA kidney and is that, I think this was more valuable than that. Ravi, you want to comment? Yeah, it was a fantastic lecture. At least I learned, and I think all the audience who were sitting here must have learned. And I must congratulate Shanik sir for this sudden spurt of idea, and it just worked like magic. So may I take this opportunity to request Sabnis sir to felicitate Pramod Rai sir. Thank you.